Hello student, welcome in Maha AMRS e-learning project. Myself Nitin Kaduji Sabri from Eklavya Model Residential School, Chikhaldara, Amravati. Today we are going to learn class 10 subject science, especially physics part, chapter 12 electricity. In this chapter we are going to learn the topic electric current and potential difference. So, what is the purpose of studying electricity? As we all know, the electricity an extremely useful thing in our day-to-day life. Whenever we think of electricity, we think all these electrical appliances which we use in our house. Example: bulb, fan, TV, iron, mixer grinder, and fridge. We all know what are the application of electricity, where we use the electricity. We use electricity in our house, we use electricity in our school, in hospital, in industrial area. Before going to start our topic, we should know some basic concept which is related to electricity. So, atom. So, what is atom? Everything is made up of atoms which contain positive particles called as proton and negative particles called as electrons. An atom will usually have the same number of positive and negatives. This makes the atom neutral. यहाँ पे एक डायग्राम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सेंटर वाला जो पार्ट है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पार्टिकल होते हैं, एक है प्रोटॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे चार्ज है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। तीसरा जो पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के बाहर की तरफ मूव होता है, रिवॉल्व होता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट है चार्ज। सो व्हाट इज चार्ज? It is a property of atom. It may be positive, it may be negative charge. Like charges repel each other and unlike charges attract each other. यहाँ पे like charges means the same charges and unlike charges means the different charges. Its unit is coulomb. चार्ज का यूनिट है coulomb and it is represented by symbol capital C. The charge on proton is 1.6 multiplied by 10 raised to minus 19 coulomb, which is the same size as the charge on electron. मतलब जितना भी प्रोटॉन पे चार्ज होगा उतना ही चार्ज किस पे होगा? इलेक्ट्रॉन पे होगा। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन is equal to number of electrons. That's why we call the atom is neutral. Here in this diagram, positive charge means there is like charges have the repulsion and negative charges means there are also like charges have the repulsion. Next, the positive and negative charges means there is a unlike charges mean different charges, positive and negative charges. So there will be attraction. Now we are going to start our main topic, that is electric current. अब इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए मैं एक आपको जनरल एग्जांपल देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक इमेज है।
कोई बता सकता है कि ये इमेज किसकी है? राइट, ये इमेज एक वाटरफॉल की है। तो वाटरफॉल मतलब यहाँ पे पानी का बहाव ये कंटिन्यूअसली है, मीन्स इन दिस वाटरफॉल देर इज अ कंटिन्यूअसली फ्लोइंग वाटर। सो इसको हम कहेंगे वाटर करंट। करंट का मीनिंग होता है टू फ्लो। करंट मीन्स टू फ्लो। अगर पानी कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है तो उसे हम कहेंगे वाटर करंट। वैसे ही अब देखो दूसरी इमेज, यहाँ पे एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर में नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस भी है। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली नेगेटिव चार्जेस लेफ्ट टू राइट ऐसे फ्लो हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या है, करंट है। कौन फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो हो रहा है, कंटिन्यूसली फ्लोइंग। तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। अब हम इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करेंगे? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज constitute the electric current. The electric current measured as the rate of flow of charge. The electric current denoted by capital I. The SI unit is ampere, which is denoted by capital A. यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें एक स्विच दिया है, एक सेल दिया है और एक बल्ब दिया है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं उसी वक्त इस कंडक्टर में से और इस वायर में से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होंगे और वो बल्ब को जलाएंगे। लेकिन उस चार्ज को फ्लो कराने के लिए कुछ टाइम तो लगेगा, मतलब सेल से लेके बल्ब तक उसे जाने के लिए कुछ टाइम लगेगा। वो जो चार्ज है वो Q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो और टाइम T, तो इलेक्ट्रिक करंट हो गया Q डिवाइड बाई T, मतलब द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है? सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, if the positive charge flows, direction of current is taken in the direction of flow. तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक कंडक्टर है, यहाँ पे इस कंडक्टर में नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं जो लेफ्ट टू राइट ये मूव हो रहे हैं, मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी वही होगी, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट, if the negative charge flows, the direction of current is taken as opposite to the direction of flow of charge. We call as conventional current. अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे एक कंडक्टर है, उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, so this is the direction of negative charges from right to left. So we have to take, in this situation the direction of current will be opposite to direction of negative charge. So this is the direction of electric current, which is opposite to the direction of negative charge. Now the next topic is electric circuit. A continuous and closed path of an electric current is called as electric circuit.
A continuous and closed path of an electric current is called as electric circuit. Here is one example of electric circuit. In this electric circuit, there are three components, electrical components. That components are: first is switch, second one is light bulb, next is battery. नेक्स्ट पॉइंट है पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए हम एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे एक टैंक है, उसका हम नाम देंगे टैंक ए, और दूसरा टैंक है, उस टैंक को हम नाम देंगे टैंक बी। इस दोनों टैंक को हमने एक पाइप से जोड़ दिया। अब इस दोनों टैंक को अच्छी तरह से देखो और मुझे बताओ कि यहाँ पे दोनों टैंक में पानी की हाइट जो है वो सेम है या डिफरेंट है। तो सेम है, तो इसे हम लिखेंगे कि हाँ, इसमें पानी की हाइट सेम है, तो वाटर इज एट सेम हाइट। ओके। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टैंक की साइज, दोनों टैंक की साइज सेम है, पानी की लेवल भी सेम है, हाइट भी सेम है, तो हम लिखेंगे कि दोनों के पास सेम पोटेंशियल है। अब मुझे बताओ कि पानी की हाइट सेम है, तो क्या ये जो पानी है टैंक ए से बी में जा सकता है या बी से ए में आ सकता है? तो यह पानी फ्लो होगा या नहीं होगा? तो आंसर है कि पानी फ्लो नहीं होगा, क्योंकि पानी की जो लेवल है वो दोनों टैंक में सेम ही है। अब हम नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। यहाँ पे एक बड़ा सा टैंक है, उसका नाम हमने रख दिया टैंक ए, और यहाँ पे एक दूसरा टैंक है जिसकी साइज छोटी है, उसका नाम हमने रख दिया टैंक बी। इन दोनों टैंक को हमने एक पाइप से कनेक्ट कर दिया। तो ऑब्जर्व करो दोनों टैंक को और मुझे बताओ कि पानी की हाइट सेम है या डिफरेंट है? तो आंसर है वाटर लेवल is different, or height of the water is different in each tank, so we can write different height. Due to the different height, there will be the difference in potential, so we can write difference in potential. अब टैंक ए की पानी की लेवल ज़्यादा है और टैंक बी की पानी की लेवल क्या है? कम है। अब मुझे बताओ कि क्या ये दोनों टैंक में से ए से बी या बी से ए पानी फ्लो हो सकता है? तो आंसर है कि जिस टैंक के पानी की लेवल ज़्यादा है वहाँ से लो लेवल तक पानी फ्लो हो सकता है। तो हाँ, टैंक ए से बी की तरफ पानी फ्लो होगा। जैसे पानी को फ्लो कराने के लिए लेवल डिफरेंस होना ज़रूरी है, वैसे ही कंडक्टर में चार्जेस को फ्लो कराने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना ज़रूरी है। तो हम कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो विद द हेल्प ऑफ बैटरी we can create the potential difference across a conductor, as well as with the help of cell we can create the potential difference across a conductor. Now, how to define a potential difference? यहाँ पे एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट B। पॉइंट A पे है चार्ज Q। चार्ज Q
ए पॉइंट से हमें बी पॉइंट तक लेके जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली वी हैव टू डू सम वर्क. So we can define a potential difference, electric potential difference between 2 points, that is AB, in an electric circuit carrying some current as work done to move a charge from one point to other. The formula for potential difference: V is equal to work done, that is W, divided by charge Q. SI unit of potential difference is volt. Thank you.